Good morning, students. This is Shubham. Today I am going to start first unit of electrostatics, electric charges and fields. What is electrostatics? Electro means charge and static means rest. When charge at rest. When charge at rest position, this is called electrostatics. Now, let's see the definition of electrostatics. When two bodies are rubbed against each other, then they become charged due to transfer of electrons from one to other body. But the charge stays where it is, hence it is called इलेक्ट्रोस्टैट. जब हम किसी दो बॉडीज को रब करना शुरू करते हैं तो बॉडीज है वो चार्ज हो जाती है. चार्ज किस वजह से हो जाती है? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से. लेकिन जो चार्ज है वो हमेशा आपका रेस्ट पोजीशन के अंदर रहता है, स्टैटिक पोजीशन के अंदर रहता है. जो चार्ज है, चार्ज आपका कभी भी मूव नहीं करता है. जब चार्ज आपका मूव नहीं करता है, चार्ज आपका स्टैटिक पोजीशन के अंदर रहता है, तो इस फिनोमिना को आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. यदि हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर अगर बात करें तो व्हेन चार्ज एट rest position, this is called electrostatics. When charge at rest position. Now, what is charge? Charge is an intrinsic property of matter. What is the meaning of that intrinsic word? Intrinsic means which is natural or fundamental. The charge is intrinsic property of matter. Now we have some properties of charge. Let's see. Usually charge on a body is due to transfer of electrons. किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से. चार्ज इज मेजर्ड इन कूलाम. चार्ज को किसके अंदर मेजर किया जाता है? कूलाम के अंदर. SI यूनिट ऑफ चार्ज इज C, is कूलाम. Now the symbol is defined for charge is Q, and charge is a scalar quantity because charge is moving in one dimension. We know that the charge is of two types, positive charge and negative charge. We know that like charges repels each other and unlike charge are attract to each other. We know that positive and negative are like charges, they always repel to each other, and positive charge and negative charge are unlike charges, they always can attract to each other. They always can attract to each other. Usually charge on a body is detected by electroscope. किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो किससे डिटेक्ट करेंगे हम? इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से. नाउ चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका जो चार्ज होता है वो क्या होता है? 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Now for example, a glass rod is electrified when it is rubbed with silk. कोई भी जो ग्लास रोड है उसको आप इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं. कब? जब आप उसे रब करते हैं किसके साथ? सिल्क के साथ. Now, what is conductors and insulators? Conductors are those materials which allow the flow of electric charge through them, like metals, graphite, impure water, etc. कंडक्टर्स कौन से मटेरियल होते हैं? जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स कहते हैं. कौन से होते हैं कंडक्टर्स? मेटल्स, ग्रेफाइट, impure water, etc. Now what is insulators? Insulators are those materials which do not allow the flow of electric charge through them, like glass, rubber, nylon, etc. कौन से होते हैं इंसुलेटर्स? इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज हम पास नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? इंसुलेटर्स कहेंगे. इंसुलेटर्स कौन से होते हैं? ग्लास, रबर, नाइलॉन, etc. Now we have circuit A and circuit B. In circuit A, we use a iron rod, bulb and battery. सर्किट A के अंदर हमने क्या यूज किया है? एक आयरन रोड का, एक बल्ब का और बैटरी का. इससे हमने एक सर्किट बनाया है. जब हम
बैटरी की हेल्प से इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेंगे तो हम क्या बात देखेंगे कि जो करंट यहाँ से चलना शुरू करेगा, तो जो करंट जब आयरन रोड के पास में जाएगा तो जो आयरन रोड है वो करंट को आगे की ओर पास कर देगा। जो करंट है वो आगे की ओर आयरन रोड के अंदर से पास हो जाएगा और आगे की ओर फ्लो होगा। जब आगे की ओर करंट मूव करेगा तो जो बल्ब है वो ग्लो करना शुरू कर देगा। जब बल्ब आपका ग्लो होना शुरू हो जाएगा तो उसका रीजन क्या होगा कि जो आयरन रोड है इसके अंदर से करंट का पास हुआ है, करंट इसके अंदर से आयरन रोड के अंदर से पास हुआ है, जिस वजह से जो बल्ब है आपका वो ग्लो होना शुरू हुआ है। आयरन रोड ने करंट को पास क्यों किया? क्योंकि जो आयरन रोड है वो आपका एक कंडक्टर मटेरियल है। यदि हम बात करें सर्किट बी की, तो सर्किट बी के अंदर हमने आयरन रोड की जगह यूज किया है एक ग्लास रोड का। जब हम ग्लास रोड के अंदर से करंट पास करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो ग्लास रोड है वो करंट को आगे की ओर पास नहीं होने देगा। जब करंट आगे की ओर पास नहीं हो पाएगा तो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो ग्लास रोड है वो आपका एक इंसुलेटर मटेरियल है। नाउ हाउ मेनी वेज टू चार्ज अ बॉडी? किसी भी बॉडी को हम कितने तरह से चार्ज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। वेज टू चार्ज। चार्ज ऑन ए बॉडी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फॉलोइंग थ्री मेथड: फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड एंड इंडक्शन मेथड। हमारे पास तीन तरह के मेथड है: फ्रिक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड और इंडक्शन मेथड। नाउ charging by friction. What is charging by friction? We know that when we rub the two bodies against each other, then they become charged due to transfer of electrons. But the charge stays where it is, but the body is losing the electrons become positively charged, and the body is gaining those extra electrons which is नेगेटिवली चार्ज। और जो एग्जाम्पल हमने इसके लिए कंसीडर किया था वो किया था ग्लास रोड का। जब हम ग्लास रोड को रब करते हैं सिल्क के साथ में, तो जो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके सिल्क की ओर मूव करते हैं। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रोड से सिल्क की ओर मूव करते हैं तो जो आपकी ग्लास रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जो आपका सिल्क क्लॉथ है वो आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। जो बेसिक प्रॉपर्टी रहेगी आपकी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर वो ये रहेगी, जो चार्ज है आपका वो इक्वल एंड अपोजिट डिस्ट्रीब्यूट रहेगा दोनों बॉडीज के अंदर। जो बॉडीज के अंदर जो चार्ज है वो इक्वल एंड अपोजिट डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये रहेगी कि कोई भी इंसुलेटर है उसको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की हेल्प से अपने क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। दूसरी बात हम क्या करेंगे कि जो कोई भी ग्लास रोड है जब उसको सिल्क के साथ में रब किया जाता है तो जो ग्लास रोड है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। लेकिन अगर इसकी जगह हम बात करें किसी आयरन रोड की, यदि हम एक आयरन रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ यदि हम रब करेंगे तो जो आयरन रोड है वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं होगी। क्यों नहीं हो पाएगी वो? क्योंकि जो आयरन रोड है वो एक कंडक्टर मटेरियल है। क्योंकि जब कंडक्टर मटेरियल को हम अपने हाथ से जब किसी सिल्क क्लॉथ के ऊपर हम रब करेंगे तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्प्शन होगा उसकी वजह से जो बॉडी है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो जो बॉडी जब न्यूट्रलाइज हो जाएगी तो उस वजह से जो आयरन रोड है वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं हो पाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की हेल्प से सिर्फ हम इंसुलेटर्स को चार्ज कर सकते हैं। जो इंसुलेटर्स हैं उन्हीं के ऊपर हम चार्ज है जो वो उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ द सेकंड मेथड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड क्या होता है? चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड की अगर बात करें तो ये आपका एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड है। In charging by conduction method, the body to be charged is brought in contact with the charging object. Now we have a conducting body. हमारे पास में एक conducting body है। अब हम इसके contact के अंदर एक charging object को इसके contact में लेके आते हैं which is positively charged. So जब हम किसी भी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट को किसी भी चार्जिंग ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो जो चार्जिंग ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो दोनों के बीच में शेयर हो जाएगा। तो जो चार्ज है उसका शेयर होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ की ओर मूव कर रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से यहाँ की ओर आ रहा है। हमने पढ़ा है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी कि जो चार्ज है वो कभी भी मूव नहीं करता है, जो सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके मूव करते हैं। मतलब कि जो कंडक्टिंग बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके यहाँ से यहाँ की ओर आपके जो मूव करेंगे।
तो जब भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे जब मूव करेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट से आपके चार्जिंग ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे, उतने यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेड्यूस हो जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूसरी ओर मूव करेंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। सो इसके बीच में शेयरिंग हो रही है चार्ज की, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इसके बीच में ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। सो नाउ द बॉडी इज चार्ज्ड बाय द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब हम क्या चीज देखते हैं कि यदि हमारे पास जो बॉडी है वो अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो जो कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है हमारा वो भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यदि हमारे पास जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज है, जो चार्जिंग ऑब्जेक्ट है हमारा वो अगर नेगेटिवली चार्ज है तो जो कंडक्टिंग बॉडी है वो भी आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब जनरली हम जो बात करते हैं इसके अंदर जो बेसिक प्रॉपर्टी रहेगी वो ये रहेगी कि जो चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड की हेल्प से हम सिर्फ जो कंडक्टर्स है उन्हें ही हम जो है वो चार्ज कर सकते हैं, इंसुलेटर्स को हम चार्ज नहीं कर सकते। यदि हम किसी इंसुलेटर को चार्ज करते हैं बाय द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन तो बहुत ही लेस अमाउंट के अंदर जो चार्ज है वो आगे पहुंच पाएगा, क्योंकि जो बॉडी है वो इंसुलेटर बॉडी है जो वो प्रॉपर चार्ज नहीं हो पाएगी। एक बहुत ही स्मॉल एरिया के अंदर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वाले एरिया के अंदर ही जो चार्ज है वो पहुंच पाएगा, पूरी बॉडी कभी भी चार्ज नहीं हो पाएगी। इट मींस इज द चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर द कंडक्टर मटेरियल। Now charging by induction. चार्जिंग बाय इंडक्शन ये आपका विदाउट कॉन्टैक्ट का मेथड। सो चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में जो एनसीईआरटी की बुक है आपके अंदर उसके अंदर भी काफ़ी डिटेल में बात की गई है, और जो प्रीवियस ईयर है जो वो उसके बोर्ड के अंदर भी इसके लिए जो है वो प्रॉब्लम पूछी गई है। तो बेसिकली जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है उसके अंदर भी आप एक कंडक्टर मटेरियल का ही है जो वो यूज़ करेंगे, इंसुलेटर मटेरियल का आप जो है जो यूज़ वो नहीं कर सकते हैं इसके अंदर, बिकॉज द कंडक्टिंग मटेरियल इज नॉट ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द चार्जिंग ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर क्या है कि जो कंडक्टर मटेरियल है उसी को आप जो है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन के हेल्प से जो है वो चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसको हम विदाउट कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे। सो इसके लिए भी इसके अंदर भी जो चार्ज है आपका वो इंड्यूस होगा। नाउ वी हैव कंडक्टिंग बॉडी, हमारे पास में क्या है एक कंडक्टिंग बॉडी है या एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसके पास में हम एक चार्जिंग ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं। यदि मैं जो चार्जिंग ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज लूँगा तो जो बॉडी है वो उसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यदि मेरे पास जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज है तो जो कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अभी मैंने क्या किया कि मैं एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जो वो उसे इस बॉडी के क्लोज लेके आऊँगा, इसके पास में लेके आऊँगा, लेकिन अब की बारी हम इसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर हम नहीं लेके आएंगे। जब इसको इसके कॉन्टैक्ट के अंदर लेके आएंगे तो जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसके जो नेगेटिव चार्ज है उनको अपनी तरफ पुश करेगा। तो ये जो बॉडी है इसके जो क्लोजर एरिया है इस चार्जिंग ऑब्जेक्ट के इस सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगा, और जो इसकी फार्दर साइड है फार्दर साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जो वो इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन अभी भी जो हमारे कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है ये न्यूट्रलाइज है, क्योंकि अभी जो इसके अंदर ये जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है ये चार्ज चार्जिंग ऑब्जेक्ट के कारण हुआ है। यदि हम इस चार्जिंग ऑब्जेक्ट को वापस इससे दूर कर देंगे तो जो बॉडी है वो वापस क्या आ जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो हम अभी इस स्टेप के अंदर इससे दूर हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हम जो ये कंडक्टिंग बॉडी है इसके साथ इसकी हम क्या करेंगे, अर्थिंग कर लेंगे। अब हमने क्या किया, इसकी अर्थिंग कर दी। जब हम इस बॉडी की अर्थिंग कर देंगे तो जो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर मूव करना शुरू कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर यहाँ से होना शुरू हो जाएगा तो जो यहाँ पे जो चार्ज है वो रिड्यूस हो जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे,
नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम जो अर्थिंग है उसे हम रिमूव कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया है, जो अर्थिंग है इसको हमने रिमूव कर दिया है, लेकिन जो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये अब जो चार्ज था वो ट्रांसफर हो चुका है, यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज है जो इंड्यूस हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि जो पॉजिटिव जो हमारी चार्ज बॉडी है इसको हम क्या करेंगे, इससे दूर लेकर जाएंगे। जब इससे हम इसे दूर लेके जाएंगे तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा, जो हमारा जो कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, वो उसके ऊपर कौन सा चार्ज रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। सो ये आपका जो मेथड है, ये आपका मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। इस मेथड को हम क्या कहेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। यानी किसी भी बॉडी को जो हम चार्ज कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड की हेल्प से, जिसे हम क्या कहेंगे, विदाउट कॉन्टैक्ट का मेथड कहेंगे। इसमें हमने जो चार्जिंग ऑब्जेक्ट है, जो हमारा चार्जिंग ऑब्जेक्ट है, उसे हमने कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर हमने नहीं लगाया है। सो अगेन हम ये बात कह सकते हैं कि कोई भी इंसुलेटर है, जो वो इंसुलेटर को चार्जिंग बाय इंडक्शन की हेल्प से हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। जो भी कोई कंडक्टर मटेरियल है उसे ही हम चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन की हेल्प से हम चार्ज कर सकते हैं। जो इंसुलेटर्स है उसे हम इन मेथड की हेल्प से जो चार्ज वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उसे ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो जो चार्ज है वो इक्वल अमाउंट के अंदर जो है वो आगे शेयरिंग नहीं हो पाएगी। Now the three basic properties of charge. The first property is additivity of charges. Charge is additive in nature. Net charge on a body or a system is algebraic sum of individual charges. किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है, जो उसका जो टोटल चार्ज है वो क्या होगा, उसी बॉडी का जो algebraic sum है उसके इंडिविजुअल चार्जेस का उसके इक्वल होगा। If we have a system of n particles which have charges q1, q2, q3 and so on, then the total charge on a system is q1 plus q2 plus q3 and so on. हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास में किसी बॉडी का जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस है, जो भी हमारे पास जितने भी तरह के जो उस बॉडी के ऊपर चार्ज है, उन सभी चार्ज को हम क्या कर देंगे, जब ऐड कर देंगे उनको, इंडिविजुअल जितने भी चार्ज हैं उनका जब सम कर देंगे तो वह क्या होगा, उसका एडिटिविटी ऑफ चार्जेस उसको बोलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस स्टेट्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कोई भी जो आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम हम किसे कहेंगे, जो हर तरीके से आपका बंद है, आपका आइसोलेट होगा जो सिस्टम आपका, उसे हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम है। उसका जो टोटल चार्ज होगा, उस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज वी नो दैट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली कैन बी ट्रांसफर। चार्ज है जो, उसे कभी भी आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ जो चार्ज है उसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर उसे ट्रांसफर किया जा सकता है। चार्ज को हम कभी भी ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नाउ द थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ charge. What is quantization? Quantization means is anything which is available in fixed amount. कोई भी जो हमारे पास चीज है वो किस अमाउंट के अंदर है, एक फिक्स अमाउंट के अंदर होनी चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, क्वांटाइज्ड वैल्यू होगी वो हमारे पास में। तो हम देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फ्रॉम डेफिनेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज implies that a body can carry a charge equal to an integral multiple of minimum charges. यदि हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर एक डेफिनेशन देखें तो चार्ज इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्जेस। फंडामेंटल चार्जेस के बारे में हमने पहले भी बात की थी भी, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसका जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है, उसका एक फंडामेंटल चार्ज होता है। तो हम क्या बात करेंगे, उसका जो इंटीग्रल मल्टीपल है। सपोज हमारे पास में कभी भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में हमेशा, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हमेशा क्वांटाइज्ड होती है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक फिक्स अमाउंट के अंदर होते हैं। कभी भी हम ऐसा नहीं कहते हैं मुझे 1.5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दो। हमेशा जो भी वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन की वो एक क्वांटाइज्ड वैल्यू होगी। सपोज 1 इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन
इस तरह से हम कोई भी जो चार्ज कोई भी इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होगी वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, फंडामेंटल चार्जेस का। तो इससे हमने क्या बनाया, जो चार्ज है वो एक इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, चार्ज का। तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही। Q है जो किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है, चार्ज ऑन एनी बॉडी, एंड एन है जो आपका क्या है, एक इंटीग्रल है, इंटीजर है आपका। और जो E है वो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो है आपका E। तो अब हमारे पास में एक क्वेश्चन है, कैन अ चार्ज 8 into 10⁻⁻18 कूलम कैन गिवन टू ए बॉडी। क्या एक चार्ज है जो वो इतना 8 into 10⁻⁻18 कूलम किसी बॉडी को दिया जा सकता है, उसके बारे में हम किस तरह से पता करेंगे। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। तो जो इसके अंदर जो वैल्यू है हमारे पास Q की क्या है, 8 into 10⁻⁻18 कूलम। अब हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो Q की वैल्यू हमने पुट कर दी 8 into 10⁻⁻18 कूलम। N एक इंटीजर है, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अभी हमने पहले भी लर्न की थी 1.6 into 10⁻⁻18 कूलम। तो वो वैल्यू हमने पुट कर दी। जब सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो होगा 50। जो हमारे पास N जो आया है, जो 50 आया है, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, प्रॉपर इंटीजर है ये। यदि N एक इंटीजर है तो क्या ये चार्ज एक बॉडी को दिया जा सकता है, तो आंसर होगा